بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اماں کالج میں داخلہ دلوانے پر راضی نہ تھی۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، تب انہیں مجھے کالج بھیجنا ہی پڑا۔ جوان بیٹی کی ماں کو وہم ستاتے ہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کالج کا دوسرا دن تھا۔ گھر سے نکلی تو دو آنکھیں میرا تعاقب کرنے لگی۔ میں نے نظریں چرا لیں اور بے نیاز بن گئی اور اپنی راہ چلتی کالج پہنچ گئی۔ واپسی پر وہ آنکھیں پھر منتظر تھیں، میں آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ اس نے گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ لاکھ بچ کر نکلنا چاہا، مگر یہ نظریں ایسی تیز کہ جدھر مڑتی اپنے جسم کے اندر ان کی تپش محسوس کرتی۔ مشکل یہ تھی کہ میں گھر پر اس بات کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کر پاتی۔ بتانے کا مطلب صاف تھا کہ گھر والے کالج جانے سے روک دیتے، اس طرح تعلیم کا خواب پورا نہ کر پاتی، اور ایسے میں کسی قیمت پر نہ چاہتی تھی۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا۔ آفرین ہے اس بندے پر، روزانہ اس نے یہ کٹھن ڈیوٹی دی۔ مجھے کالج سے گھر اور گھر سے کالج وہی پہنچانے اور لانے والا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سر سے میں نہ کبھی کلام کیا اور نہ کبھی تنگ کیا، بس مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا اور جب میری منزل آ جاتی اچانک غائب ہو جاتا۔ آخر کار میں نے اس کی دیوانگی سے سمجھوتا کر لیا۔ سوچا میرا کیا جاتا ہے، اپنی ہی ٹانگیں تھکاتا ہے، اپنی ہی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہتا، مجھے کیا لینا، جس دن کچھ کہا تو دیکھ لوں گی۔ شروع میں ڈرتی تھی، رفتہ رفتہ اعتماد آتا گیا۔ اب اکیلے کالج جاتے جاتے ڈرنا لگتا تھا۔ جو تکب کرتا تھا اسے اپنا محافظ اور چوکیدار تصور کر لیا۔ سکون سے تعلیم حاصل کرتی، بالآخر میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز جب کالج میں پارٹی تھی، اپنے راستے پر جا رہی تھی، اچانک وہ سامنے آ گیا۔ اسے اس کے قدموں کی آواز سے پہچانتی تھی۔ پہلی بار صورت دیکھی، بس دیکھتی ہی رہ گئی، خود پر قابو نہ رہا اور پوچھا کہ بات ہے؟ مسٹر کمال کی مستقل مزاج ہو، ابھی تک ہمت نہیں ہاری؟ وہ بولا آج ہمت ہار چکا ہوں۔ یہ کہہ کر جلدی سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور چل دیا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ پہلے اس کاغذ کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی پڑھوں یا پھاڑ دوں۔ اسی لمحے تجسس نے میرا دامن پکڑا لیا۔ گھر لا کر اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ کوئی لوفر یا آوارہ شخص نہیں ہوں، تم کو دیکھا بس پھر بلا نہ سکا، تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ عجب جنونی آدمی ہے، سوچا جان پہچان بنا رہا زندگی بھر کا ہم سفر بننے میں کیا جانو آوارہ ہے یا شریف خاندان کا ہے، یا نکما ہے یا مالدار ہے۔ لگتا تو نکما سا تھا، پر صورت لاکھوں میں ایک تھی، مگر اجنبی انجان تھا۔ کوئی کیسے کسی راہ پر چلتا اعتبار کرے۔ اس نے اپنا نام شکیل لکھا تھا اور گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ میں نے اپنی سہیلی کو کاغذ دکھایا کہ معلوم نہیں کون ہے، کالج کے پہلے دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے نام پڑھا اور بولی جانتی ہوں میں اسے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اکلوتا لاڈلا اور مالدار باپ کا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان لوگوں کا اپنا بزنس ہے۔ شکیل برا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ عشق میں گرفتار ہے، اور جانتی ہو نہ عشق نہ پوچھے ذات۔ میں نے کہا نازیہ ایسی بات مت کرو، اس مسئلے کا حل نکالو۔ اب بہت ہو گیا، 1.5 سال سے خاموشی سے برداشت کیا ہے۔ ولی تم بڑی سنگ دل ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں چھوٹا۔ ارے نادان، کوئی اتنا بھی کسی کو چاہے گا کہ برسوں کسی کے پیچھے چلتا رہے؟ صبر تم نے کیا یا اس بیچارے نے؟ اب کیا کروں میں، نوبت پرچے بازی تک آ گئی ہے۔ بھائی زندگی میں اتنا چاہنے والا دوبارہ نہیں ملے گا، سنجیدگی سے سوچو۔ ہاں کہتی ہوں میں شکیل کی امی یعنی اپنی چچی کو تمہارے گھر رشتہ کے لیے بھیجتی ہوں، پھر جو جواب تمہارے والدین سے ملے گا اسے قبول کر لینا۔ غرض کئی دن نازیہ میرے ذہن کو ہموار کرتی رہی، تب میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ رشتہ تو مناسب ہے۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی مان کر نازیہ اپنی چچی کو ہمارے گھر لے آئی۔ انہوں نے آتے ہی سیدھی بات کی کہ
बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए हैं। वसीला नाजिया बनी थी, इसलिए अम्मी ने खातून की बात गौर से सुनी और हाल अहवाल मालूम किया। जब हर तरफ से तसल्ली हो गई तो अम्मी ने कहा कि कुछ दिन तक सोचकर जवाब देंगे। मेरा एफए का रिज़ल्ट आ गया, मैं अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। अब शकील के घर वाले बार बार आने लगे। इधर नाजिया से शकील पूछता कि शाजिया के घर वाले जवाब क्यों नहीं देते, कितनी मुद्दत सोचने में लगाएंगे, हाँ या ना में जवाब तो दें। उन्हें एक दिनों अब्बा जान को बीमारी लाक हो गई और वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गए। वालदा ने मुझे उम्मीदों का मरकज़ बना लिया। हर वक्त कहती, अब मियाँ जी काम नहीं कर सकते, अब शाजिया ही हमारा सहारा बनेगी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात बुरे होते जा रहे थे। लगता था मुलाजमत मेरे नसीब में लिखी गई है, वो भी इस उम्र में जब लड़कियां सुनहरे ख्वाब देखती हैं। शकील की वालदा चक्कर लगा रही थी। बेटा इनको मजबूर करता था कि शाजिया से शादी करनी है। कुछ भी करो अम्मा, शाजिया की वालदा को मना लो। और अम्मी जान रिश्तेदारों के पास जा जाकर मेरी मुलाजमत की दरख्वास्त करती थी। इसी रोज़ अम्मी के एक कज़न आए और कहा, शाजिया के लिए मुलाजमत ढूंढ ली है, अगर करनी है तो दरख्वास्त और मतलूबा कागजात जमा करवा दें। मेरी तो जान जा रही थी। मैं मुलाजमत की चक्की में पिसना नहीं चाहती थी, लेकिन वालदा के हाथों मजबूर थी। अम्मी अपने कज़न को दुआएं देने लगी, भैया अल्लाह ताला तुमको इसका अजर सवाब दे, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। शाजिया ने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, अब इसको मुलाजमत करनी पड़ेगी और बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का स्कूल जारी रखना है। कम अज़ कम बच्चे मैट्रिक कर लें, फिर शाजिया की शादी का सोचूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग बुझ गया। अब मैंने कमरे में जाकर सर्द और ख्वाबों की चादर में खुद को लपेट लिया। इसी वक्त माँ कमरे में आई, मुझे चादर ओढ़ने लेटा पाया तो बोली, मैं जानती हूँ तुम अफसरदा होकर सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी रंजीदा ना हो, ये अल्लाह की मर्जी है और हमारी मजबूरी। तुम्हारे वालिद को कैंसर हो गया है, उनकी ज़िंदगी के दिन ज़्यादा नहीं है। मैं मजबूर हूँ, वरना कोई माँ नहीं चाहती कि इसकी बेटी दुल्हन न बने। बेटा कभी कभी बड़ों को छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की ज़िंदगी वो सवाल है। मैंने बामुश्किल आंसू पी लिए और कहा, अम्मी जान फिक्र ना करें, मैं मुलाजमत करूँगी, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगी। मैं नहीं तो और कौन कुर्बानी देगा। रात करवटें बदलते गुजर गई। कभी सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आवाज़ें देते, कभी शकील का ख्याल आ जाता जिसने 1.5 साल खामोशी से गुजार दिए। शकील की मोहब्बत अब मेरे दिल पर वार करती थी। फिर मैंने ओहद कर लिया, खा मुझ पर क़यामत बीत जाए, अब मैं घर वालों का सहारा बनूंगी। सुबह उठ गई, तैयार होने लगी। माँ की निगाहों ने मेरा इरादा भांप लिया। माँ बोली, बेटा बेशक हमारा सहारा न बनो, मगर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे बीमार बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बाकी ही माँ की नज़रें दीवार के इस पार भी देख लेती हैं। मैं शकील से मिलने जा रही थी, लेकिन उसे समझाने के वो अब हमारी आस मेरा इंतज़ार छोड़ दे और लिया अपनी वालदा को अपने हमारे घर ना भेजे, क्योंकि मैं अपने कुंबे के लिए कुर्बानी देने पर मजबूर हूँ। नाजिया के ज़रिए मैंने शकील से मुलाकात की। शकील मेरी बातें सुनकर नाराज़ हो गया और कहा, तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो, लेकिन इश्क मजाक नहीं। तुम नौकरी का ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारे कुंबे का सहारा बनूंगा। तुम्हारे वालिदैन मेरे माँ बाप हैं, तुम्हारे बहन भाई मेरे बहन भाई हैं। मैंने मोहब्बत नहीं तुमसे इश्क किया है। मेरी गैरत ने यह गवारा न किया कि कोई गैर मेरे कुंबे की कफालत करे। मैंने इसीलिए कोई उम्मीद अफजा जवाब न दिया। जाती हुई उसने कहा कि शाजिया वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। तुम बहुत बड़ा गलत फैसला कर रही हो। तुम असल में मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो।
घर की मजबूरी तो एक बहाना है, वरना दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। माँ की खुशी और बहन भाइयों के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोंट दिया। वो मुसलसल 15 साल मुशक्क़त की चक्की में पिसती रही और अपने घर की गुलशन की आबियारी करती रही। सभी ने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा, लेकिन मेरा दिल, रोता हुआ दिल कोई ना देख सका। वो वक्त आ गया जब मेरी मेहनत रंग लाई। बहन भाई पढ़ लिख कर अपने अपने घर के हो गए। इनको अपनी खुशियाँ मिल गईं तो मुड़कर भी ना देखा कि मैं इनके कदमों की धूल थी, ये अस्कारों के पीछे रह जाने वाली राख थी। वालदैन की वफ़ात के बाद भाभीयों ने भाइयों को अलग कर लिया। वो मुझसे अलहदा रहना चाहती थीं। बहनें अपने घर की हो गईं और मैं अकेली ज़िंदगी कश्ती खींचने लगी। जब उम्र 42 साल हो गई तो शकील याद आया, जिसने कहा था शाजिया वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। मैं बहुत तन्हा थी। एक दिन नाजिया के पास गई। वो दूसरे शहर जा चुकी थी। दिल बुझा हुआ था। सोचा अपनी प्यारी सहेली से मिल लूँगी तो अफसरदगी में कुछ तो कमी आएगी। नाजिया से मिलने दूसरे शहर गई। नाजिया ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और गर्म जोशी से मिली। कुछ गिले शिकवे हुए और माजी की सुनहरी बातें हमने दोहराई। अचानक ही नाजिया ने बताया, शकील एक मुद्दत के बाद दुबई से लौट आया है और कल मेरे घर दावत पर आ रहा है, लेकिन शकील नहीं जानता कि तुम आई हो। मैंने कहा, खुदा के वास्ते तुम शकील को मेरे बारे में ना बताना। ये सुनकर वो खामोश हो गई। अगली रात खाने पर नाजिया के घर मेहमानों की आमद हो गई। जब खाना शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि दो आंखें मुझे काफ़ी देर से देख रही है। न जाने इस दिन मुझ में कौन सी कशिश आ गई थी कि दो आंखें मुझे देखते ही जा रही थीं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। बहन भाई छोड़ गए थे, अब बुढ़ापे की सरहद पर थी। मैं वापस घर आ गई और बहुत रोई। शकील बहुत याद आया। दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन होगा? बार बार मुश्किल उठी। दरवाज़ा खोला तो शकील सामने खड़ा था। नाजिया बाज साथ आई थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। उन्होंने मुझे सहारा दिया। बुखार की शिद्दत से मैं तप रही थी। मुझे सहारा दिया और अस्पताल ले गए। मुझे यखनी तैयार करके पिलाई, यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। शकील ने बिठाया और बोला, नाजिया के घर जब तुम्हें देखा, पुराना घाव जो भरा न था वो फिर से ताज़ा हो गया। नाजिया को मजबूर करके लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये बड़ा बेरहम होता है। मगर देखो, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वक्त नहीं हूँ और न ही मैं बेराम हूँ। बेराम तुम थी जो मुझे ठुकरा दिया, और आज तुम कितनी तन्हा हो, कोई पुरसान हाल नहीं है। इसी रोज़ मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हारे घर वालों का सहारा बनना। मैंने कहा, शकील तुम नहीं समझोगे, वैसे भी दुख मिले। अगर शादी करती फिर भी दुख मिलता। इंसान अपनी अना को तोड़कर कभी सालिम नहीं रहता। बस तुम अच्छे लगे और शादी मेरी उम्र का तकाजा था, मगर एहसान मैं ना ले सकी। शकील मुझे माफ़ कर देना। शकील बोला, शाजिया इश्क में माफ़ी नहीं होती। तुमको माफ़ी मिल जाएगी मगर मुझे ना मिलेगी। मैं जब तक जीऊँगा सूली पर लटकता रहूँगा, क्योंकि मैंने इश्क किया था। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, वैसे ही तुम इश्क नहीं समझोगी। मैं दुनिया घूम आया हूँ, घाट घाट का पानी पिया है, मगर अभी तक शादी नहीं की। तुम मुझसे शादी कर लो, उम्र बीत चुकी है। मैंने कहा, अब क्या अच्छी लगूंगी, शादी का वक्त तो बीत चुका है। पेंशन मिलती है, इससे ज़िंदगी बसर हो रही है। नाजिया ने मगर हार ना मानी और पीछे ही पड़ गई। फिर मेरी और शकील की शादी करवा कर ही इसने दम लिया। आज भी शकील कहते हैं, हमने सुनहरे ख्वाबों की तरह शादी तो नहीं की, लेकिन हमें आज भी एक दूसरे का साथ चाहिए। अभी जब दो आंखें मेरा ताक़ब करते महसूस होती हैं तो कहती हूँ, शकील तुम बड़े मुस्तकिल मिजाज हो, तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल मिलनी मुश्किल है।